Hi friends, I'm Anand Panchbhai at Engineers Classes and let us start with the next topic in AC fundamentals, that is pure resistive circuit. We have to understand voltage and current relationship for this particular circuit. The question goes this way: for pure resistive circuit, write voltage and current equations, draw waveforms and phasors, that is vectors, vector diagram, comment on its power factor, find the average power in pure resistive circuit. So this is what is the question. Guys, we people have studied all these things into our 12th science in alternating current. And today we are going to see some different kind of an approach to solve the same thing. Fine? Okay, beta, हंसने का नहीं है, कहाँ ध्यान है आपका? हाँ? चलो, ध्यान. So, how exactly we are supposed to derive it? यार तू हंस क्यों रही है? मेरे को पता नहीं चल रहा है. हाँ? काय को हंस रही है तू? चलो. So let's deal with this. So let us consider that I am giving supply over here which is equal to, किसी को लिखना नहीं है, सबका नोटबुक बंद, पेन रख दो नोटबुक के अंदर, यानी कोई गड़बड़ भी नहीं होगी. ठीक है, चलो. So we have given voltage which is equal to Vm sin omega t, and I am interested to find out the equation of current over here. I am interested to find out the equation of current over here. This is pure resistive circuit. फाइन, ठीक है. तो V is equal to Vm sin omega t. तो we know that very well according to Ohm uncle, I that is equal to V divided by R. So we can say that V is equal to Vm sin omega t divided by R. So Vm by R is nothing but Im into sin omega t. So I have got the value of current. मेरे को वोल्टेज का इक्वेशन मिल गया, मेरे को करंट का इक्वेशन मिल गया, एंड नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द वेव फॉर्म्स फॉर बोथ. फाइन, वोल्टेज हमने दिया, करंट हमने निकाला. इज इट क्लियर? करंट इज अ डिमांडिंग क्वांटिटी. वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ आवर करंट. नाउ लेट अस ड्रॉ दैट. सो वोल्टेज कैसा है? Vm sin omega t. गाइज आई नो दैट फॉर साइन x and y coordinates give me the sine value. So this is 1 0 0 1 minus 1 0 0 minus 1. This is 0. This is pi by 2, pi 3 pi by 2 and 2 pi. This is what we know very well. So now let's deal with voltage at first. So we'll be having Vm. I consider voltage is 100, R is 10. So this is 100 by 10 comes out to be 10. So Im would be less in comparison of your Vm. Is it clear? So we can say that this is our Vm. Okay, this is our Vm, this is our Im, this is our Im, this is a 0, this is again minus Im, and this is minus Vm. Is it clear? Fine. Okay, so now let's draw this waveform. Y coordinate is my coordinate, y coordinate is my coordinate. Fine. Okay, so let's say omega t, when omega t is 0, then this is pi by 2, then this is pi 3 pi by 2 and 2 pi. Let us draw beta यहाँ पे. So we can say that 0 पे साइन 0 कितना होता है? 0. तो 0. साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1. 1 मल्टीप्लाइड बाय Vm which comes out to be Vm. साइन पाई कितना होता है? 0. So 0 multiplied by Vm becomes 0. Sin 3 pi by 2 कितना होता है? -1. -1 multiplied by Vm becomes minus Vm. Sin 2 pi again कितना होता है? 0. So 0 multiplied by Vm will give me 0. So this is where I have got my voltage waveform. Is it clear? Any doubt on this? Fine, we've got a voltage waveform. Now let us talk about current. Guys, current follows the same wave, right? It follows the sign only. So we can say that सिर्फ मैग्नीट्यूड अलग है, पर वो वेव शेप तो चेंज नहीं हो रहा है. मैग्नीट्यूड इतना ही है, वेव शेप उसका चेंज नहीं हो रहा है. So we can say that we have got वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सिर्फ ज्यादा है, करंट का मैग्नीट्यूड कम है. So this is how we have got our current waveform. Can you follow this? I mean, can you understand this well? पता चला ये चीज कैसे आई? फाइन, ठीक है. दोनों चीज साइन वेव को ही फॉलो करते हैं, उसमें है ना वो? Yeah. So we can say that both the voltage and current they are following sine function, so it is going to be the same, right? ठीक है. So we have got voltage and current equation. We have drawn the waveforms as well. Now
लेट अस डू द सम एनालिसिस ऑन द वेवफॉर्म. बेटा यहाँ पे देखिएगा तो पता चलेगा, है ना. चल, सो वी हैव गॉट जीरो से चालू किया, वोल्टेज जीरो है तब करंट भी जीरो है, वोल्टेज मैक्सिमम हुआ, करंट मैक्सिमम हुआ, वोल्टेज जीरो हुआ, करंट जीरो हुआ, वोल्टेज नेगेटिव हुआ, मैक्सिमम नेगेटिव हुआ, करंट भी एट द सेम टाइम नेगेटिव मैक्सिमम हुआ, वोल्टेज जीरो हुआ, करंट जीरो हुआ. हम साथ साथ है. पता चला कि नहीं पता चला? दोनों साथ में ही चालू है. But I mean that's a very wrong word. I have to edit this thing. Fine. दोनों साथ में ही बढ़ रहे कम हो रहे. Fine. That's a very good word. I should use that. Okay. So we can say that अगर यही चीज मुझे phases में draw करनी हो, phases are what? They are rotating vectors. Fine. They are rotating vectors that you people have studied in 12th science. Hopefully you know that. अगर नहीं पता है तो we are going to learn it today as well. Guys, I can represent this voltage waveform like this. This is Vm, that is the maximum value. Fine. So how to justify? ये एक लाइन ये साइन वेव को कैसे रिप्रेजेंट करता है? इसको फेजर बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? फेजर बोलते हैं. बेटा सब सेट है, कुछ गड़बड़ है? ओके. सो वी हैव गॉट दिस एज अ फेजर. फाइन. इसको फेजर बोलते हैं. Phasors are basically rotating vectors. They are rotating in anti-clockwise direction. Fine. और उसका जो y-axis पे component आता है ना, that gives me the value of sine. ठीक है? कैसे? तो चलो, थोड़े टाइम के बाद जो 45 डिग्री पे आया, अभी इसका प्रोजेक्शन जीरो है, तो जीरो पे जीरो. एग्जैक्ट 90 डिग्री पे आया तो अक्खा कक्खा Vm आ गया. पता चला कि नहीं पता चला? जब ये घूम घूम के पाई पे आया तो वापस जीरो हो गया. घूम घूम के एग्जैक्ट 3π/2 पे आया, वापस नेगेटिव मैक्सिमम हो गया. पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? फाइन. पता चल रहा है. सो इवेंचुअली क्या हो रहा है? इवेंचुअली जब ये ऐसा रोटेट हो रहा है ना, तो उसका y कंपोनेंट वी आर टेकिंग. व्हेन इट इज हियर, लेट अस टेक द y कंपोनेंट, तो इतना है. व्हेन इट इज एट 45 डिग्री, लेट अस टेक द y कंपोनेंट, इतना है. तो 45 डिग्री पे ये जो इतना है ना, इतना आ जाएगा. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अलग क्लियर हुआ? ये वैल्यू कितना है? इतना वैल्यू है. ये वैल्यू कितना है? इतना वैल्यू है. समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? सो व्हेन द वेक्टर इटसेल्फ इज रोटेटिंग, दैट गिव्स यू द फेजर. That gives you the phasor. तो phasor क्या है पता चला? It is a rotating vector in anti-clockwise direction. Done. Find the component of that particular vector is going to give you the value of that sine wave. Done. ठीक है? हर एक को oscillations में भी ऐसा देखा था ना 11th standard. हाँ? Second last chapter. Oscillation में वो ऐसा ऐसा हो रहा था, हम लोग sine wave निकालते थे. Right? ठीक है? So it is very much analogous. है ना? So we understood what is a vector. अरे यार, वोल्टेज इतना है, करंट इतना छोटा है, तो वी कैन से दैट वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ में ही चालू है ना. आई मीन बोथ आर स्टार्टिंग टुगेदर. फाइन. सो दिस बिकम्स Im, दिस बिकम्स Im. तन खबर पड़े दिख रहा. फाइन. सो वी कैन से दैट वोल्टेज जैसे जा रहा है, करंट भी साथ में ही जा रहा है, तो दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है. वोल्टेज और करंट के बीच में कोई एंगल नहीं है. सो वी कैन से दैट वी कैन ड्रॉ ओवर हियर द फेजर. द फेजर इज ड्रॉन लाइक दिस. द फेजर. फेजर क्या आया? तो ये वोल्टेज है और करंट उसके साथ आ गया. बराबर. फाइन. तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज. वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज. पता चला? वो एक दूसरे के फेज में है, मतलब फेज डिफरेंस. फेज माने एंगल. फाइन. बोथ आर इन सेम फेज. दोनों का एंगल ऑलवेज सेम रहता है. यहां पे देखो तो जीरो, यहां पे देखो तो π/2, बीच में देखो तो दोनों का वही एंगल रहेगा. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? ओके. सो वी हैव गॉट वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन फेज. सो वी कैन से दैट एंगल between voltage and current is equal to 0. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज इक्वल टू 0. पता चला? दोनों साथ साथ में, तो एंगल का है, कोई एंगल का डिफरेंस ही नहीं है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अगर कोई डिफरेंस होता तो कैसे हो जाता? कोई डिफरेंस होता तो कैसे होता? वोल्टेज ऐसे, करंट कुछ तो ऐसे आया, दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस है. दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? बगा सका कि क्लियर हुआ बेटा आपको? फाइन. ओके. सो वी अंडरस्टूड दैट. राइट नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट? दैट इज इक्वल टू 0. नाउ लेट अस टॉक अबाउट comment on its power factor. So how do you define power factor? How do you, anybody knows? Anybody remember that? 12th में पढ़ा था power factor. Excuse me. क्या था power factor? बगासा खा के क्या था बेटा power factor? सप्रेस्ड बगासा था बेटा आपका वाला बगासा. चलो, power factor is defined as this. Power factor, cosine
of angle between voltage and current gives me the value of power factor. Cosine of angle between voltage and current gives me the value of power factor. Cosine of angle between voltage and current बगासा खा के gives me the value of power factor. ठीक है, तो अभी मेरा वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना है भाई? जीरो एंगल है, तो पावर फैक्टर कितना हो गया? फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट पावर फैक्टर विच इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर. क्या बोलते हैं? यूनिटी पावर फैक्टर. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? डन. कोई डाउट इसके अंदर? बेटा समझ पड़ रहा है? आप लोग इतना क्यों सो रहे हो? है समझ पड़ रहा है ना बेटा? है आंखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या बात है? क्या छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो? चलो कोई नहीं. पावर फैक्टर वी हैव अंडरस्टूड इट इज यूनिटी ओवर हियर. पावर फैक्टर वी हैव अंडरस्टूड यूनिटी ओवर हियर. नाउ वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द एवरेज पावर. ब्लडी हेल पावर. पावर कैसे मिलता है? पी आई मीन पावर कैसे मिलता है? पी. वोल्टेज इनटू करंट. Voltage into current gives me the value of power. So guys, last time I have told you, I don't remember whether I have told you or not, but chotu indicates it's an instantaneous value. What? Instantaneous value. Tatshanik mulya. Fine. That's instantaneous value. That gives me the value of voltage or say current at any given instant of time. It gives me the value of voltage or current at any given instant of time. So we can say that you put any value of time over here, you'll get the value of voltage, as voltage is continuous function of time. Time के साथ change हो रहा है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? So it is going to give you the, अच्छा वो उसमें नहीं है ना, तो ठीक है. चलो, so पता चला कि नहीं पता चला? It is continuously varying. So we can say that छोटो quantities is for instantaneous values. ठीक है? मोटू quantities are for average values. मोटू quantities are for average values. So we can say that power factor done हो गया. अभी पावर पे जाते हैं. पावर चोटू मतलब instantaneous power. चोटू मतलब instantaneous power. You try to see whether it is there or not in that eyeball. I just forgot that people were watching. I just forgot. So instantaneous power, which is equal to instantaneous voltage multiplied by instantaneous current. Instantaneous voltage कितना था? Vm sin omega t. Instantaneous current कितना था? Im sin omega t. Okay, so we've got it is Vm, Im sin omega t, sin square omega t. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? Fine. I am supposed to find out the waveform of instantaneous power. How will I be able to draw it? So we will put all the values that I know. देख अपने को sin स्क्वायर करना है, बस दूसरा कुछ करना नहीं है. अभी when you say sin स्क्वायर तो उसका फाइनल रीजन क्या हो गया? 0 से लेके 1 हो गया कि नहीं हो गया? माइनस तो आएगा ही नहीं पिक्चर में है. सो वी कैन से दैट sin पे चढ़ा और Vm Im का मल्टीप्लिकेशन हो गया. तो देख अल्टीमेटली क्या करना है? इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन करना है. पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन. साला यहां पे मल्टीप्लाई कर. 0 into 0 0. मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम और एकदम बड़ा मैक्सिमम. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? फाइन. ओके. 0 into 0 0. नेगेटिव मैक्सिमम नेगेटिव पॉजिटिव मैक्सिमम. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अला क्लियर हो रहा है? अगेन 0 into 0 0. वी हैव गॉट ब्यूटीफुल वेव ऑफ पावर. Yeah, so that's your power, man. That's your power in pure resistive circuit. Can you follow this? पता चल रहा है पावर का वेवफॉर्म कैसे आया? साइन स्क्वायर का कर्व भी ऐसे ही होता है भाई. नेगेटिव चीज पॉजिटिव हो जाती है, बस दूसरा कुछ होता नहीं है. Vm Im उसका मैग्नीट्यूड है, Vm I उसका एम्पलीट्यूड है. फाइनली पता चला कि नहीं पता चला? मैक्सिमम मतलब Vm Im. डन. ओके. सो वी हैव गॉट पावर एंड नाउ forget all other waveforms. You see this waveform? Can you see this waveform? Fine. What is the maximum? This is Vm Im. Yeah. Fine. So we can say इसका भी एवरेज कैलकुलेट करना है. वो फुल वेव रेक्टिफायर जैसा नहीं दिख रहा? फुल वेव रेक्टिफायर. Fine. So ultimately we have to find out the average over here. So we can go for half cycle because it is as such repeating from pi. बगासा खा के. Fine. या तो साला 2 pi तक ले ले, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अपने को मैथमेटिक्स चाहिए उसका. मैथमेटिक्स कहाँ है? ये रहा. ये मैथमेटिक्स है. वो वेवफॉर्म का मैथमेटिक्स ये है. जैसे उस वेवफॉर्म का मैथमेटिक्स हम यहाँ पे लेके आए थे. तू तेरा पहला दिन है ना आज साले में, तू थोड़ा जल्दी आता तो मैंने डिराइव किया था वो छोटा सा. कोई नहीं, गाली क्यों दे रहा है पर? कमाल है. चलो, तो P that is instantaneous value is supposed to go for average value. तो average value मोटू
मोटू विच इज इक्वल टू, कहां से 2 पाई तक लेते हैं, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई तक p विच इज फंक्शन ऑफ ओमेगा t इंटू डी ओमेगा t विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा t लिया बगासा खाके है, विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा t लिया है ना, ओके चलो, so we can develop 1/2 पाई p ओमेगा t क्या है, vm im sin square ओमेगा t, तो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई तक इट इज vm im sin square ओमेगा t, ये लिखोगे तो चलेगा, डू यू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज इट इज फॉलोइंग दैट ओनली 0 से 2 पाई में, फाइन, ठीक है, 0 से पाई भी लिख सकते हो, 0 से 2 पाई भी लिख सकते हो, चलेगा, ओके, so vm im will come outside, vm im will come outside, divided by 2 pi is already there, sin square का integration नहीं होगा, so I'll be having 1 minus cosine of 2 omega t divided by 2 into d omega t, with respect to omega t I am doing this integration, okay, chalo, so vm im average p average which is equal to vm im divided by 2 सुमड़ी में बाहर आ जाएगा, 4 पाई बन जाएगा, फाइन, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2, फाइन, इट इज sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 रनिंग फ्रॉम 0 से 2 पाई तक, so that is equal to vm im by 4 pi multiplied by 2 pi minus sin 2 multiplied by 2 pi 4 pi sin 4 pi 0 minus 0 sin 0, so 2 pi got cancelled, I'll be having 2 which is vm im by 2 which is equal to vm by root 2 into im by root 2 which is equal to vrms multiplied by irms, so this is the amount of power, average power will be eaten by that pure resistive circuit. 7 marks में क्वेश्चन आता है, 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, क्लियर, क्या पोर्शन है, वोल्टेज और करंट को डिफाइन करने का, उसके इक्वेशंस लिखने के बाद में उसके वेव फॉर्म्स बनाने के बाद में फेजर बनाने का, पावर फैक्टर के बारे में बात करने की, और बाद में एवरेज पावर ढूंढ के बोल देने का, भाई इतना एवरेज पावर प्योर रेजिस्टिव सर्किट खा लेगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, लिखो, कोई डाउट इसके अंदर, cool.